हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्योरिटी विजन चैनल और सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल CISSP सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। और डोमेन 1 चल रहा है यहाँ पर, जहाँ पर सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। आज पार्ट 3 में हम देखने वाले हैं रिक्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन टाइप, जहाँ पर हम अलग अलग इन्वेस्टिगेशन को समझने वाले हैं। सिविल लॉ क्या होता है, एवरीथिंग वी आर गोना अंडरस्टैंड इट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक स्वामी है और आप देख रहे हैं अपना चैनल सिक्योरिटी विजन। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन का। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टिगेशन? सो इन्वेस्टिगेशन, लाइक जैसा हम पढ़ रहे हैं CISSP और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, अगर आप स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, उसकी कुछ गाइडलाइंस रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अगर देयर सर्टेन एक्टिविटीज which you not follow properly, the result in criminal investigation and etc. So let's start the investigation type. सबसे पहले आता है आपका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, राइट? जहां पर आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है डिटरमाइनिंग वेदर अ क्राइम criminal law has been violated. It usually conducted by law enforcement organization, right? So criminal law जो रहता है, मैं आगे आपको you will understand in details in next slide, right? So criminal law, क्रिमिनल एक्सेस केसेस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एक्शंस के लिए दैट इज हार्मफुल टू द सोसाइटी, राइट? पनिशमेंट, जेल, some imprisonment, some additional fine or capital punishment, etc. Okay, so let's start. इन्वेस्टिगेशन टाइप में आता है आपका सिविल इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले, राइट? सो सिविल इन्वेस्टिगेशन आप देख सकते हो यहाँ पर जो लिखा हुआ, सिविल इन्वेस्टिगेशन डील्स विद ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल और कंपनी दैट रिजल्ट इन डैमेज और लॉस। सो क्या होता है, आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से क्या याद रखने की जरूरत है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले restitute someone, okay, restitute someone, and indemnify. Indemnify is a word. Indemnify someone or compensate someone, okay? These all three words you have to remember. Let me repeat again. Restitute someone, and then indemnify someone, and then compensate someone. These are the same words, means the same words used for the financial investigation in the civil investigation, right? So there's no imprisonment यहाँ इसमें कोई civil investigation में there's no imprisonment in civil law, right? So they generally, in civil law also has let me tell you, civil law has one word you always have to remember: fort. Okay, so TORT. So you have to remember tort. It's very very important for the exam perspective also. So they talk about negligence, breaches, lack of due care and due diligence. So anything has happened between two parties, your customer and your organizations, and any kind of breaches happening, lack of due care, due diligence is happening, that come under civil law. Okay, that is called fort law. So that's something you need to remember. Okay, so civil investigation में ये, उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? सो इंटरनल ये होता है जनरली, दैट इज इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन, internal to the organization, that's not related to any law and all. So for example, I can give you an example, like sexual harassment, any malicious activities happening. You are playing with the data, that's called data integrity. Somewhere you have to present some data to the client, customer, or sending outside, you're manipulating that data. Okay, so in that condition the warning will be given or the result is termination. So this is administrative investigation, जहाँ पर we talk about internal for the organization, right? Great. Next हम बात करते हैं यहाँ पर regulatory investment investigation, sorry. So this is very very important, please pay attention here. If you under some regulation, if you are under some regulatory or some regulation, okay, non compliance or that, non compliance अगर होता है तो non compliance on that will be regulatory investigation. अगर आप if you are part of PCI DSS, if you're part of HIPAA, SOX, there are many regulations, standards. So अगर आप उसके अंदर आते हो और if you failed, if you non compliant against that, सो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए द बैंक, व्हाई बैंक इज फेल, व्हाई एनी इन any detection happening, so any compromise, why attack is happened, why this
breach has happened in the bank. So why, question will come, why it is failed. So let's do the investigation. Okay, so did bank follow the regulatory? Okay, if yes, if no, if not, there will be a fine. Okay, only fine will be there. So that is about the regulatory investigation. That's something you need to understand. Great. Next आता है आपका इन्वेस्टिगेशन टाइप. सो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं, राइट? सो आपको ऐसे समझना है इसको, इंडस्ट्री वाइज सम स्टैंडर्ड हैज टू फॉलो. यू हैव टू फॉलो सम स्टैंडर्ड. फॉर एग्जांपल जैसे कार्ड इंडस्ट्रीज होगी, राइट? सो कार्ड इंडस्ट्री फॉलो करती है पीसीआई डीएसएस. ओके, सो पीसीआई डीएसएस करती है. हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगी, जो पीएचआई डेटा के लिए काम करती है, जैसे हिप्पा रेगुलेटरी कंप्लायंस में आपका आ गया. सो ये स्टडी यू नो इंडस्ट्रीज वाइज सम स्टैंडर्ड्स रहते हैं विच यू हैव टू फॉलो. ओके, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ विच यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट. पीसीआई डीएसएस की जब बात करते हैं तो पीसीआई डीएसपी बहुत पहले, समवेयर अराउंड 2005 2006, समवेयर इट वाज सेट बाय पीसीआई काउंसलर्स. सो पीसीआई काउंसलर जैसे कि 4 पीपल से था. ऑर्गेनाइजेशंस दे वर्क टुगेदर, लाइक वीजा था इसमें, मास्टर कार्ड था, डिस्कवर था, एमएक्स कार्ड था. So these all decided, like their organizations, they come together, they sit together, and let's set some rules for card industries, right? So they set some industries by standards. Okay, so they accordingly, now all the card industries organization, they are following the same PCI DSS, right? So earlier जो Visa था, Visa, Master, they were using their own standards, right? तो ऐसे काम चलता था. सो इन्वेस्टिगेशन टाइप में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, दैट्स समथिंग वी हैव अंडरस्टूड. ओके, let's talk about some scenario what you have understood. So XYZ person is studying a major legal system which are followed throughout the world. So he then thought of going through the archives of legal access involving XYZ organization. So now समझना क्या बोल रहा हूँ मैं. He came across a recent case where XYZ organization lost a legal battle against one of its partner organization. So the dispute was regarding breach of some clause of partner agreement. So the partner filed a lawsuit against the company for violation of its rights and claim for a compensation of $2 million. So question is, under which type of law had the partner filed the lawsuit? You should have the answer ready, right? You should have the answer ready. So we are talking about $1 million compensation. और starting में मैंने आपको बताया था कि right, this is coming under civil law. Okay. Now let's quickly talk about some documentation, develop, implement सिक्योरिटी पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर, गाइडलाइंस एक्सेट्रा. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इसमें से भी आते हैं और मैं बहुत इजी तरीके से आपको बता दूंगा, लाइक इट्स योर कप ऑफ टी. ओके, सो सिक्योरिटी पॉलिसीज की हम सबसे पहले बात करते हैं. तो सबसे पहले डिस्कस करने से पहले यू रिमेंबर सम की पॉइंट्स. फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट टू क्रिएट सिक्योरिटी पॉलिसीज. सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी, दैट्स अ सीनियर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट द पॉलिसी. Second, needed endorsement to define the ownership. You need to define the ownership as well. So you need to follow the endorsement to define the ownership as well. Now there are some characteristic. You can see the characteristic of security policies. आप जैसे देख सकते हो कि first, it must be generic, non-technical and easy to understand. Okay, the first one means there should not be any jargon. कुछ ऐसा वैसा नहीं रहना चाहिए. There should not be jargon. सेकेंड इसके नीचे आता है कि इट मस्ट बी रिव्यूड एंड मॉडिफाइड पीरियोडिकली, राइट? तो इसका मतलब क्या होता है कि इट इज़ वेरी वेल डिफाइंड, बिकॉज पॉलिसीज ऐसे चेंज नहीं होती है. सिक्योरिटी पॉलिसीज एक बार बन गई, सो it generally doesn't change until you have done a major drastically change, heavily change. अगर कुछ हो गया, big change हो गया, तो थोड़ा बहुत होगा. अदरवाइज पॉलिसीज की जो बात करूं, अगेन नेक्स्ट आपको हेल्प करेगा. ये पॉलिसीज रहती है हायर लेवल की पॉलिसीज रहती है, ठीक है, ये ऐसे चेंज नहीं होती है. सो दैट पॉलिसीज जो आती है, दिस इज कम अंडर मिशन. जब मिशन प्रिपेयर करते हैं, विजन प्रिपेयर करते हैं, तब का ये पॉलिसीज रहता है. सो दिस पॉलिसी जनरली डजंट चेंज, राइट? सो पॉलिसी कैसे बनती है? एक बार पॉलिसी बनने के बाद
the review होगा policy का, policy will be reviewed, and then it will go for the suggestion, what the suggestion you get it. Once all the modifications and final procedure, you get the approval, and after approval you will start implementing the policy. As simple as that. Perfect. Great. Now type of security policies क्या होता है इसका, तो आप देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज पहला है। इसका मतलब ये होता है कि दिस इज वेरी जनरल पॉलिसीज, वेरी वेरी जनरल एंड डिटेल्ड पॉलिसीज। वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी पॉलिसीज। सिक्योरिटी पॉलिसीज के अंदर ये 3 टाइप्स आते हैं। ओके, सो जिसके बारे में बात करें तो फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज। इसमें ये डिटेल पॉलिसी रहेगी, लाइक यू विल हैव द डायरेक्ट सपोर्ट, लाइक फॉर एग्जांपल mission, vision, what will be there, that's everything will come, and rest of the policy will come under it. So the organization security policy is the first one, jahan everything you have to decide. So it focus on the issues relevant to every aspect of the organization. Perfect, great. Second issue specific policies. So it basically focuses on specific service, department or function that is डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। सो क्या होता है, एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे ईमेल की कोई स्पेसिफिक पॉलिसी बना दी, सो मेरा ईमेल अभी ब्लॉक नहीं होता है, यू नो दैट वी हैव सम मिरर ट्रैफिक एंड ऑल। सो नाउ वी नीड टू क्रिएट सम स्पेसिफिक पॉलिसी वेयर व्हेन यू सेंड एन ईमेल that will go to the exchange, and exchange to it will go to the DLP. So you have to specifically you're defining a new policies for incoming or outgoing. So that's focus on the specific policies. एंटीवायरस की कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज आपने बना ली, सो वो सब टेक्निकल वाइज स्पेसिफिक एरिया ऑफ टेक्नोलॉजीज का होता है। नाउ थर्ड आता है सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसीज। ओके, सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसीज, सो इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल सिस्टम। क्या समझ में आता है, जैसे एग्जांपल के लिए एक्सेस कंट्रोल का कोई पॉलिसी बनाया, ये होता है आपका स्पेसिफिक पॉलिसीज। आईपीएस, आईडीएस, डीएलपी, इनका अगर कोई आप पॉलिसी बनाते हो तो ये सिस्टम रिलेटेड, सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसीज, यू नो, आईपीएस आईडीएस रिलेटेड टू सिस्टम, डीएलपी रिलेटेड टू योर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, सो स्पेसिफिक पॉलिसीज रहती है। सो राइट, सो एग्जांपल के साथ भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। सो जैसे स्टैंडर्ड पॉलिसीज कंपोनेंट हो गया, पॉलिसी एलिमेंट्स हो गया, पॉलिसी यू नो क्रिएशन गाइडलाइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो गया, और उसके बाद आता है आपका मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पॉलिसी एंड पॉलिसी एनफोर्समेंट। सो ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। सो देखो, पॉलिसी चार्ट यहाँ पर हम समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वंस योर मेन पॉलिसी इज डन, जिसके बारे में बताया सिक्योरिटी पॉलिसी जब एक बार आपकी बन गई, देन बनने के बाद आपका स्टैंडर्ड, गाइडलाइंस, बेसलाइन, ये सब चीजें आती है। मतलब once your mission, vision, goal, tactics, that policy is created, that's a high level policy is created, rest of the policies coming under that. और rest of the policies क्या हो जाएगी आपकी, आप देख सकते हो स्टैंडर्ड, गाइडलाइन, प्रोसीजर एंड बेसलाइन, नीचे का आप चेक करो, नीचे का, ठीक है। सो ये 4 उसके बाद आते हैं। सो इसमें इसके बारे में चलो हम समझते हैं भाई ये होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड की। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड, कैन यू पुट इन अ कमेंट, what do you understand in your own words? So standard means compulsory. Okay, it's refer to mandatory activities, rules, action and regulation. जैसे आपका सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, यू नीड टू रेगुलर रिव्यू द पॉलिसी, इट इज मैंडेटरी, इट्स वेरी वेरी मैंडेटरी। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, इफ योर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड इज यूज टू यू नो फॉलो AEC 256। ये क्या होता है AEC 250, जब क्रिप्टोग्राफी पढ़ेंगे हम तो क्रिप्टोग्राफी में इंक्रिप्शन वगैरह पढ़ते हैं, तो जैसे इट्स योर ऑर्गेनाइजेशन इज मैंडेटरी टू यूज you know AE 256 or SHA 256 for example. So and it get compromised in case your SHA 256 or AE 256 it gets compromised by attacker, तो चेंज तो करना पड़ेगा आपका स्टैंडर्ड, राइट, यू नीड टू चेंज द स्टैंडर्ड। सो दैट इज मीन, राइट। सो इट डिफाइंस कंपल्सरी, टाइम टू टाइम बेसिस पे आपको चेंजेस करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे the way you are using you know say for example legacy operating system, and as per SOX regulatory compliance, it's a risk, right? You're using default password, it's a risk. So tactics in nature, so that's something you need to understand, right? Or our
टेक्टिकल्स डॉक्यूमेंट्स, ओके, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल दिया ISO 27001 का, मैंने सॉक्स का एग्जांपल आपको दे दिया, एंड आई हैव गिवन यू PCI DSS examples. So this is how it actually works. Okay, so you have to ensure that your policy is getting reviewed properly, and it bound to make some changes periodically basis if needed. Okay. नेक्स्ट आप देख रहे हो राइट साइड में गाइडलाइंस. सो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय गाइडलाइंस? गाइडलाइंस इज नथिंग बट प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन. ओके, प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन रहता है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी इन नेचर. ओके, नॉट ऑब्लिगेटरी. It's not mandatory to use it, but it's always best because it has some instruction given is here which you need to follow. Okay, एक एक वर्ड्स को मेरे समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, बिकॉज यहाँ से वहाँ नहीं होना चाहिए. स्टैंडर्ड का गाइडलाइंस में नहीं आना चाहिए, गाइडलाइंस का प्रोसीजर बेसलाइन में नहीं आना चाहिए. तो अभी स्टैंडर्ड समझा, गाइडलाइन समझा, और अब समझने वाले हम प्रोसीजर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड प्रोसीजर? देखो, प्रोसीजर जो होती है वो लोएस्ट लेवल ऑफ पॉलिसीज होती है, हाई लेवल पॉलिसी नहीं होती है, लोएस्ट लेवल ऑफ पॉलिसी होती है. तो हाईएस्ट लेवल पॉलिसीज में हम ये पढ़ रहे हैं, जिसमें ये थर्ड है आपका प्रोसीजर. सो ये लोएस्ट लेवल प्रोसीजर रहती है, ये स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करती है, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप होती है, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं. कैसे? जैसे सपोज फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन गाइडलाइन. ओके, स्टेप बाय स्टेप. सो फर्स्ट आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, एंड देन यू हैव टू डबल क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड देन ये चेक बॉक्स करना है, ये साइन करना है, वो साइन करना है, नेक्स्ट जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू नीड टू फुल FQDN और ऑल. ये स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइडलाइंस हो जाती है. इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसीजर. ओके, सो इंसिडेंट रिस्पॉन्स, अगर एक बार इंसिडेंट जनरेट होता है और इट इफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम इज वर्किंग ऑन इट, राइट, सो क्या प्रोसेस रहेगा, उसका उसका क्या प्रोसेस रहेगा? मैनेजर को मेल जाएगा, मैनेजर उस पर रिस्पॉन्स करेगा, मैनेजर को रिस्पॉन्स करने के बाद अकॉर्डिंगली आप या तो क्लोज करोगे या उसको ओपन करोगे, यू गो फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, एंड देन आफ्टर you will close or you will have a lesson learning. So the procedure is a step by step. I hope this is clear, right? Perfect. Okay, next we talk about baseline. Okay, so baseline यहाँ पर क्या हो जाता है? Baseline is, you need to follow minimum level of security. Always remember minimum level of security, or you can say benchmark. This is something you need to follow. So ये देखो यहाँ पर you have your concept has to be clear. Baseline means benchmark, minimum level of security. मतलब क्या? और मैं बेसिक में जाता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस बिल्ट है, तो उसमें एक OS इमेज है. OS इमेज में एंटीवायरस रहेगा, DLP रहेगा, XYZ रहेगा, एंड दैट इज योर बेस लाइन. इसके बाहर कुछ नहीं जाओगे आप. सो दिस इज समथिंग, जितने भी मशीन आते जाएंगे, न्यू ज्वाइनिंग रहेंगी, वो OS इमेज जो रहेगा, बिल्ट इमेज जो रहेगी, वो दैट विल बी डिप्लॉयड अक्रॉस द एनवायरमेंट. यहाँ पर एग्जांपल दिए, जैसे विंडोज 7 सिस्टम है, इट मस्ट हैव सर्विस पैक 1 इंस्टॉल्ड. ओके, दिस इज योर बेस लाइन विच यू नीड टू फॉलो. Okay, so this is also system specific. Established common secured states, right? Refer to state or state that used as a compensation for further change. Okay, so that's something you need to understand. Great. That's it. ये जो मैं आपको बताया, ये पॉलिसी बेसलाइन एंड सम क्रिमिनल लॉ वगैरह, ये आपका पार्ट थर्ड में आया था. उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, we will be covering about identify analysis, what we called prioritize business community, BCI, BCA. डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं. वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट पर्सनल सिक्योरिटी क्या होती है, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट and many more things, security control assessment, or the next topic is going to be very very interesting because handling risk, we will be covering here, risk analysis, etc. will be covering, so don't miss that. Okay, it's going to be very very important for you all guys. So thank you so much for watching this video. For now, if you like this video, please do comments and subscribe the channel. um, that's it. Thank you so much guys, and keep studying. Do well. Have a great day ahead. Bye bye.